Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 11th grade to today's class. And it is a very important class from the perspective of Unit 6, that is Business, Finance and Arithmetic. And this is class number 4. And the title of today's class is Understanding Unit of Sale, Unit Cost and Unit Price. Now, this is something very important, though it seems simple, but majority of the people throughout their careers they do not understand what exactly is unit of sale, what exactly is unit of cost, and what exactly is unit price. So in today's class I'm going to share content with you and a detailed session with you on this specific topic. And on every point I have you know prepared numericals as well, questions as well. And do not forget to take up our rigorous practice section, that is, at the end of the session, with which you can practice a lot about today's class and score very good marks in upcoming examination. So let's start today's session. And in today's class, we are going to talk about these 8 points. The first one is unit of sale. Second one is examples of units of sale. Third is unit cost. Fourth is calculating unit cost. Fifth is unit price. Sixth is importance of unit price. Seventh one ग्रॉस प्रॉफिट. सिंपल है, पर लोगों को ना, आप बच्चों याद रखिएगा, कई बार इसमें ना कंफ्यूजन रह जाता है. और मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन क्लासेस इसीलिए बनाता है, so that any sort of confusion that can occur in any of the contents can be clarified. और वो तभी हो सकता है when utmost simplicity is being given to the student, so that they can understand and write very good answers in the upcoming examination. And the last one is conclusion. Let's start with the first point, unit of sale. Measurement plays a vital role in any business. Very very important. आपको पता है, आपने किसी भी बिजनेस को ग्रोथ ओरिएंटेड अगर बनाना है तो मेजरमेंट्स में बहुत जरूरी है. या तो आप प्रोडक्शन करेंगे और फिर आप ये सर्विसेज करेंगे. तो आप जो भी चीज कर रहे हैं उसे मेजर करना बहुत जरूरी है, एज इट हेल्प्स ट्रैक सेल्स, कॉस्ट एंड प्रॉफिट इफेक्टिवली. कितना खर्चा हो रहा है, कितना आप कमा रहे हैं, कितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट. खर्चा माइनस कमाना ग्रॉस प्रॉफिट है. तो ये सब चीजें पता होंगी तो बिजनेस आप करेंगे. सिर्फ सुबह जाके अपना काम शुरू कर लिया और आपको पता नहीं कि बिजनेस कहाँ जा रहा है, तो एक्चुअली ये पता तब चलता है जब बिजनेस डिसॉल्व हो जाता. सेकेंड पॉइंट, अ यूनिट ऑफ सेल is an essential concept that serves as the foundation of any business. It's a very important concept. Actually, business में क्या है? The first thing is payments. Second thing is sales. So a unit of sales is an essential concept that serves as the foundation of any business. It refers to the measurable units used to sell a product or service. So, but it's an important point. So I'm going to clip this point for you and mark it as very important point. Very important from examination point of view. For instance, a lawyer bills their client based on the number of hours worked, making time hour their unit of sale. Similarly, for a fruit vendor, the unit of sale are apples could be measured in kilograms. This standardization helps businesses analyze their performance and take corrective actions. तो बच्चों, किसी बिजनेस में सेल्स का बहुत महत्व है और सेल्स का महत्व पता करने के लिए उसके यूनिट पता होना बहुत जरूरी है. फिर किस प्रकार से आप सेल्स दे रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स में, सर्विसेज में या प्रोडक्ट्स में. बल्क सेल्स अलग है और
रिटेल सेल्स अलग है। आपको यूनिट्स पता होने जरूरी है। अब मैं क्वेश्चन एक लेता हूं। अ गारमेंट शॉप सेल्स 150 टी-शर्ट्स इन अ मंथ। If the unit of sales is per piece of each t-shirt cost rupees 500, what is the total revenue of the month? अब ये आसान तरीका है यूनिट ऑफ सेल को समझने। अब यहां पर यूनिट ऑफ सेल क्या है? पर पीस। तो बहुत सिंपल है। यूनिट कितने सोल्ड हुए? 150। यूनिट प्राइस क्या था? 500। तो आपने 150 को मल्टीप्लाई करना है 500 के साथ, एंड यू विल गेट रुपीज 75,000। तो टोटल रेवेन्यू आपको इस महीने मिला 150 टी शर्ट जिनकी कीमत 500 रुपये आती है, उन्हें बेचकर 75,000 रुपीज। तो यहां पर यूनिट ऑफ सेल्स को पता करने के लिए हमने इस प्रॉपर स्लाइड को पढ़ा है यूनिट ऑफ सेल के लिए। अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिट ऑफ सेल आपको पता है कि वी पीपल आर वेरी फेमस टू प्रोवाइड यू एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। तो जो एग्जाम्पल्स का मतलब ही ये है कि क्लैरिटी देना बच्चे। Different businesses define their unit of sale based on what they sell. A fruit vendor measure apples in kilograms. A garment shop sells t-shirts by the piece. A dairy sells milk in liters. A baker sells cakes in kilograms. By standardizing unit of sale, businesses can better track past performance and predict future outcomes. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वीआईपी पॉइंट है। इसे हम कहेंगे वीआईपी। बाय स्टैंडर्डाइजिंग यूनिट ऑफ सेल, अब किस प्रकार से सेल्स जनरेट कर पा रहे। इट हेल्प्स यू टू ट्रैक पास्ट परफॉर्मेंस एंड इट हेल्प्स यू टू ट्रैक द फ्यूचर आउटकम। तो वन इज पास्ट परफॉर्मेंस एंड सेकंड वन इज फ्यूचर आउटकम। क्वेश्चन, अ डायरी मिल्क डेयरी sells milk in liters. If it sells 250 liters in a day at rupees 60 per liter, what is dairy's revenue or the daily's revenue? Solution, कितना यूनिट सोल्ड हुआ? 250 लीटर्स। यूनिट प्राइस क्या है? रुपीज 60। और यूनिट ऑफ सेल क्या है? लीटर्स। तो डेली रेवेन्यू यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्राइस इज इक्वल टू 250 into 60 इक्वल्स टू 15,000 रुपीज। तो बच्चों ये आसान तरीका है, पर इसको समझाया ही इसी तरीके से जाता है। देयर इज नो कॉम्प्लेक्स वे टू मेक इट क्लियर टू द स्टूडेंट्स। तो दिस इज एन इजी एग्जाम्पल। और मैंने आपको शुरू में कहा था कि कॉन्सेप्ट इजी है पर इंपॉर्टेंट है। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात समझाता हूँ। जो चीज ना बहुत ज्यादा इजी होती है ना करने में, whatsoever is easy to do, whatsoever is easy to do is easy not to do as well। तो वो चीजें इतनी आसानी से कई बार करी भी नहीं जाती। आप देखिए हमारे पास 24 घंटे होते हैं दिन के अंदर, हमको सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटा अपनी हेल्थ पर खर्च करना है। वॉक करनी है, रनिंग करनी है, स्किपिंग करनी है, योगा करना है, 1 घंटा। कितने लोग कर पाते? आसान है। 23:1, कितना आसान। अब ये समझिए आपका दिन 23 घंटे, 24 घंटे का है ही नहीं। तो लाइक वाइज आगे चलते हैं। यूनिट कॉस्ट। अब हम कॉस्ट निकालेंगे, और ये आपकी बुक में से एग्जाम्पल है। द यूनिट कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड सेलिंग वन यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। यूनिट कॉस्ट क्या है? एक यूनिट की कीमत। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेन है, इसकी कीमत क्या है? यूनिट की कॉस्ट। और वो कैसे निकाली जाती है? द यूनिट कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब एक चीज को बनाने के लिए जो वैरायटी ऑफ चीजें यूज की जाती है, उनकी भी कॉस्ट इसमें डाल दी जाती है। तो उसे कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट। तो अब ध्यान से पढ़िए। द यूनिट कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट्स involved in producing, storing, and selling one unit of a product or service.
Variable cost includes expenses like raw materials, packaging, transportation. तो ये चीजें included है इसमें. For example, a tea vendor's unit cost includes milk, sugar, चाय की पत्ती, tea leaves, cooking fuel, and disposable cups, and for one cup of tea. मतलब एक चाय का कप उससे बनाना है चाय के वेंडर ने, तो उसके लिए उसको ये सारी चीजें चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, शुगर, टी लीव्स, कुकिंग फ्यूल, एंड डिस्पोजेबल कप्स फॉर वन कप. While calculating unit cost, एक यूनिट की कॉस्ट, wastage due to spillage or evaporation must also be considered. अब वेस्टेज भी आपने लेनी कस्टमर से ही है, जो वेस्टेज आपको हो रही है वो भी उससे ही लेनी, क्योंकि आपकी एक चाय का कप बनने में आपकी इवेपोरेशन को भी वेस्टेज माना जाए, आपकी स्पिलेज को भी वेस्टेज माना जाए, इंक्लूड किया जाएगा एज कॉस्ट. Dividing the total cost of production for a batch by the total number of units gives the per unit of cost. Dividing the total cost of production, जो total cost निकली है प्रोडक्शन की, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया, फॉर अ बैच बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स बेचे हैं. फॉर एग्जाम्पल एक चाय का कप 10 रुपए का है और 100 रुपया आपकी टोटल कॉस्ट लगी है, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना किया, आपका 10 रुपया. अब मैंने साइड में एक एग्जाम्पल दिया, और यही हमारी बच्चों मेवरिक्स इंडिया सोल्यूशन की क्वालिटी है कि हम जो पढ़ाते हैं ना, उसमें बच्चों को अटमोस्ट क्लैरिटी देते हैं. बहुत जल्दी हम बिजनेस स्टडीज भी स्टार्ट कर रहे हैं. वेरी सून यू विल हैव सेशंस ऑन बिजनेस स्टडीज, और कंप्लीट डिटेल, ये नहीं कि आई वॉश, कंप्लीट डिटेल, A to Z, A to Z, चैप्टर 1 का फर्स्ट पॉइंट से लेके चैप्टर लास्ट का लास्ट पॉइंट, उसमें से अब आपकी मर्जी है. अगर बोर्ड्स में आपको कम आ रहा है तो उसमें से आप कम चूज कर सकते हैं, पूरा आ रहा है तो पूरा चूज कर सकते हैं. वी आर very definite that we are going to provide you the complete syllabus, the complete syllabus. Okay. Question क्या है? A tea vendor spends rupees 300 on milk, rupees 150 on sugar, rupees 100 on tea leaves, and rupees 50 on cooking fuel to make 200 cups of tea. What is the unit cost per? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा आपको. आप देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, और कई बार 2 से 2.5 नंबर में भी आ जाते हैं. क्वेश्चन आसान है पर हर कोई निकाल नहीं पाता. अब सॉल्यूशन क्या है, आप टोटल कॉस्ट निकाल लो. 300 रुपए का दूध, 150 रुपए की चीनी, 100 रुपए की चाय की पत्ती, और 50 रुपए का फ्यूल. तो टोटल 300 प्लस 150, 450 प्लस 100, 550 प्लस 600, और टोटल कप कितने बनाए हैं, 200. तो ये कॉस्ट है. ये उसको 200 चाय के कप 600 रुपए के पड़े हैं, तो एक्चुअल कॉस्ट है, ये सेल्स का प्राइस नहीं है. कि उसको जो उसके सिर पर पैसा पड़ा है कि उसे देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक 200 कप्स, इज 3 रुपीज पर कप, विच इज समिंग टू 600 रुपीज. तो ये हो गई यूनिट की कॉस्ट. कॉस्ट, खर्चा कितना. Calculating unit cost. To calculate the unit cost, businesses sum up all the variable costs for a certain quantity and divided by the number of units produced. तो इतनी वेरिएबल कॉस्ट में जब आप एक यूनिट प्रोड्यूस किया, उसको बेचा, तो आपको उस यूनिट की कॉस्ट कैसे निकालनी, सारी वेरिएबल कॉस्ट को एक साथ मिला लें. फॉर इंस्टेंस, इफ अ टी वेंडर स्पेंड्स रुपीज 300 on ingredients and labor to make 100 cups of tea, the unit cost would be 3 rupees per cup. Including wastage ensures accuracy in these calculations. अब मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है. A baker spends rupees 1200 to bake 50 cakes, but due to wastage, only 45 cakes are sellable. What is the unit cost per cake? अभी क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा, पर पहले के क्वेश्चन से थोड़ा ट्रिकी है, बट
इक्वल मार्क्स में आपको आएगा 2.5 मार्क्स। टोटल कॉस्ट कितनी थी? 1200 रुपये। कितने केक बने? 45। टोटल कॉस्ट 1200 डिवाइडेड बाय टोटल सेलेबल 45, तो 1200 डिवाइडेड बाय 45 इक्वल्स टू 26 रुपीज 67 पैसा पर केक कॉस्ट पड़ी है उस बेकर। और अगर 50 होते तो ये और कम। अगर हम 50 से भी निकाल के देख लें, सारे 50 के 50 सेलिएबल होते तो ये 1200 डिवाइडेड बाय 50, तब 24 रुपये कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, कैलकुलेटिंग यूनिट, यूनिट प्राइस। अब पहले हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस इज द प्राइस एट विच द यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज सोल्ड टू द कस्टमर। इट इज यूजुअली हायर देन यूनिट कॉस्ट। ऑब्वियसली अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो आपका यूनिट प्राइस हाई होगा यूनिट कॉस्ट से, आप to ensure profitability. For the tea vendor, if the unit cost of a cup of tea is rupees 3, they may set the unit price rupees 4. 3 रुपया पड़ रहा है तो 4 रुपए, 4.5 रुपए भी रख सकते अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। Several factors such as market demands and competition influence the final unit price. अभी आपके आसपास बहुत सारे चाय वाले, तो आप 3.5 रख, प्रॉफिट तो आ रहा है ना। क्वेश्चन, if a baker's unit cost for a cake is 26 rupees 67 and they want a profit of 13 rupees 33 per cake, what should be the unit price? तो कितने रुपए पर आप केक बेचोगे? तो आप पहले यूनिट कॉस्ट निकालोगे, कितनी है? 26 रुपये 67 पैसे। डिजायर्ड प्रॉफिट है 13 रुपीज 33 पैसे। तो यूनिट कॉस्ट और डिजायर्ड प्रॉफिट को सम करोगे तो आपको अब केक 40 रुपए का एक बेचना। तो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट यूनिट प्राइस एज वेल। Importance of unit price. The price charged by a business should cover its cost while remaining attractive to customers. इतनी भी कॉस्ट नहीं ले लेनी कि कस्टमर दोबारा मुड़ आए ना वापस आपके पास। अल्टीमेटली द मार्केट प्लेस डिटरमाइंस द ट्रांजेक्शन प्राइस। और जिस मार्केट में, जिस प्रकार की मार्केट में आप बैठे हो, फिर वो फाइनली डिटरमाइन करता है कि आप क्या ट्रांजेक्शन प्राइस चार्ज कर सकते हैं। Business adjusts their pricing strategies based on consumer behavior and market trends to remain competitive. और जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, वो अपने प्राइसेस वो एडजस्ट करते रहते हैं एज पर द डिमांड एंड द एरिया इन विच दे आर। ग्रॉस प्रॉफिट अब बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने यूनिट कॉस्ट यूनिट प्राइस पढ़ लिया, अब ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ लिया, जो मेरे को आपको पहली इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझा दिया था। Gross profit is the difference between the unit price and unit cost. चाय का कप कॉस्ट कर रहा था 3 रुपए, बिक रहा था 4 रुपए का, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 1 रुपया। सिंपल। It represents the profit a business earns from selling one unit before deducting fixed expenses like rent or salary. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को देख लेते हैं। It represents the profit a business earns from selling one unit before, after that you deduct fixed expenses like rent and salaries। वो भी आपको उसी में से देनी है, क्योंकि बाहर से आप लेके नहीं आएंगे। जो बेचेंगे उसी में से सैलरीज निकलेंगी, उसी में से रेंट निकलेगा और उसी में से एक्सपेंसेस निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द यूनिट प्राइस ऑफ अ टी इज रुपीज 4 and the cost unit cost is rupees 3, the gross profit per cup is rupees 1. The figure helps businesses evaluate their profitability and identify areas for improvement. आप जितना improve करेंगे
उतना ही आप उसे बेहतर प्राइस पर बेच पाएंगे और उतना ही बेहतर प्रॉफिट आप अर्न कर। So this has brought us to the conclusion. Understanding the concept of unit of sale, unit cost, and unit price is crucial for running a successful business. आपको पता होना चाहिए आप किस यूनिट में सर्विसेज दे रहे हैं, किस यूनिट में आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एंड हाउ यू आर रीपिंग प्रॉफिट्स. These metrics enables businesses to assess their performance. इससे आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को एक्सेस कर सकते हैं, आप अपनी ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं, एंड टेक इन्फॉर्म डिसीजंस. आप हैफजर्डली डिसीजंस ना ले, आप इन्फॉर्म डिसीजंस लेंगे उसके. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेस ऑब्जर्व्स एन इंक्रीज इन यूनिट सोल्ड ओवर अ पीरियड, इट इंडिकेट्स इंप्रूव्ड सेल्स परफॉर्मेंस. अगर किसी बिजनेस में ये इंडिकेशन आता है कि आपके यूनिट ऑफ सेल्स बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट्स पे हैं. These simple yet vital concepts form the backbone of effective business management. और ये सिंपल येट वाइटल कॉन्सेप्ट्स किसी भी इफेक्टिव बिजनेस की बैकबोन कहलाते हैं. तो बच्चों, आज की क्लास में हमने बात किया यूनिट ऑफ सेल पर, यूनिट कॉस्ट पर, यूनिट प्राइस पर और ग्रॉस प्रॉफिट पर. I hope you have understood all these points clearly. So, with this, we have come to the end of the class where we have covered up these 8 points. Unit of sale, the first one. Second one, examples of unit of sale. Third one, unit cost. Calculating unit cost is the fourth one. Fifth, unit price. Sixth, importance of unit price. Seventh, gross profit. And eighth, conclusion. After that, rigorous practice section is there. Practice question with hints. Synopsis of the whole session. Vocabulary from the session, both in English as well as Hindi. Questions, simple questions on unit of sale. Questions भी है, साथ में solutions. Unit cost पे questions है with solution. Unit price पे है questions with solution. 5 questions मैंने दिए. Gross profit पे है 5 questions. Top 10 objective type questions along with answers. Answers. True and false statements with answers. And fill in the blanks. 10 fill in the blanks with answers. तो बच्चों, हमारा जो प्रयास है वो ये है कि आप एक हमारी क्लास करें और आप समझें, फिर दूसरों को पढ़ाएं. हमारी क्लासेस इतनी ज्यादा डिटेल्ड है, इतनी इजी टू अंडरस्टैंड है कि जो बच्चा पहली बार क्लास अटेंड करता है उसको भी ये लगता है कि आई कैन टीच इट फर्दर टू अदर्स. सो बच्चों, until we meet next time, bye bye for now. God bless you all and take care. Or please keep sharing this content with students, those who are interested in learning about entrepreneurship, those who are doing their 11th and 12th grade. So until we meet next time, bye bye for now. God bless you all. Take care. And do not forget, it's a session and a presentation by Team Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always gain. So see you in the next class. Take care.